Mm, those who are failing to connect the session and present over here can tell their friends to contact on 990-400-44447. It is already in the chat box. Can you please see and tell your friends to contact them? Once again, I'm repeating 990-400-44447. It's a technical support. You can tell them to call them. So just to honor them, let us wait for 1-2 more minutes and let them enter in. Yes, process of registration is bit confusing, but yeah, it was easy, I guess. It was not that confusing. So it's 8:39 and by 8:40 we will start the session. So it is 8:40 and let us start with the sessions. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all on the 86th program from the platform of Let's Grow Together. Hereby, I also like to welcome Rotarians from Rotary Club of Ahmedabad Airport, Rotary Club Metro, Rotary Club Asmita, Supreme, Rotary Club E-Galaxy, and also members from Shri Jhalawar, Vishashrimari Sthanakvasi Jain Samaj, and all other guests. I welcome you all. आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्या, ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को शत शत नमन करते हुए और उनकी कृपा हम सब पर सदाई बनी रहे, ऐसी प्रार्थना। कौन सी कार चाहिए आप सबको? मर्सिडीज बेंज, जैगुआर या फरारी आपको मिल सकती है। कितना पैसा चाहिए? वो भी आपको मिल सकता है। कितनी ज्यादा तरक्की चाहिए? ये सब कुछ आपके कदमों में आके गिर सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, एज यू बिलीव एंड रिसीव। 2006 से पहले इस टर्म को ज्यादा लोग शायद नहीं जानते थे, पर 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री आती है, एक मूवी आती है द सीक्रेट के नाम से। बाद में एक बुक भी आती है द सीक्रेट के नाम से, जो कि वायरल हो जाती है और फिर हर एक की जुबान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन छा जाता है। ये सिद्धांत बड़ा ओबीडियंट है, जो आप सोचते हो वो ही लाके देता है। कुछ क्वांटम लॉज हैं जो आम इंसान की सोच समझ से थोड़ा परे हैं। तो चलिए आज हम
इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि इसके बैकग्राउंड में एग्जैक्टली साइंस क्या है और वो कैसे काम करता है। इस बात की पूरी जानकारी देने हेतु हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जब उनका परिचय सुनेंगे तो लगेगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हालांकि कोई जगह नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनका परिचय देना नहीं होता है। नरेंद्र मोदी मीन्स नरेंद्र मोदी, सब उन्हें जानते ही हैं। वैसा ही आज हमारे स्पीकर के बारे में है। He is none other than Mr. Sneh Desai. No need of any introduction, but just to satisfy myself, I am trying to give his very brief introduction. Mr. Sneh Desai is founder director of Sneh World Group of Companies and has authored many books and developed DVDs and CDs on personality and self-development. As the youngest trainer of India, started training on dynamic memory workshop at a tender age of 9 and obtained the degree of Microsoft Certified Professional at the age of 12 years. He is credited with the popular titles Cool Guru at 20 with Mercedes by Times of India and Magician of Words by Divya Bhaskar Daily. He achieved so many awards like Gauravanta Gujarat and Bharat Nirman from different institutes, organizations, and communities. He upgraded his versatility by becoming certified yogacharya, past life regression therapist, Vastu Shastri, tarot card reader, and also certified hypnotist and NLP trainer by USA. He is a life coach, national and international trainer, and changed lives of around 2.3 million participants and has huge fan following around the world. His signature program, Change Your Life, based on mind power, is conducted in more than 28 cities in India, as well as in USA, Canada, UK, and Australia. His other niche value programs are Experience Awakening, that is a spiritual program, Ultimate Life, that is awakening inner warrior with mastery over science and achievements and art of fulfillment, Krishna Katha, dynamic yoga, parenting, many metrics, and many more. His 100 plus videos and programs are available on different social media. And top of above all, he's a he's a USPA C licensed skydiver and has done over 250 skydiving jumps across 7 countries of the world. So, dear friends and family, with profound pride and joy, I am inviting our today's speaker, Mr. Sneh Desai. स्नेह देसाई जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। Thank you so much. Lots and lots of gratefulness. लीना जी, आपको मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए लेट्स ग्रो टुगेदर के आई कैन सी सो मेनी पीपल जो यहाँ पर आज हमारे बीच मौजूद है. इफ यू गाइज कैन पुट वीडियोज आई विल बी एबल टू सी एवरीवन ऑन माय बिग स्क्रीन. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, लीना जी ने ये टॉपिक बहुत ही बखूबी सिलेक्ट किया है बिकॉज ये टॉपिक मेरी जिंदगी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा. एक इंसान कहीं रेगिस्तान में जा रहा था और उसे एक छोटा सा पेड़ नजर आता है. वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है. हुआ कुछ ऐसा कि वो काफी पसीना पसीना हो रखा था एंड उस सिचुएशन में उसने मन में ऐसे ही सोचा कि भाई काश मुझे कहीं से पानी मिल जाए. एंड सरप्राइजिंगली पलक झपकते ही उसके सामने पानी आ गया. तो उसने वो पानी पी लिया. लेकिन उसके मन में दूसरा सवाल खड़ा हुआ. मन में ख्याल आया कि भाई काश मुझे खाना मिल जाए, भूख भी लगी है. अचानक से उसके सामने खाना आ गया. जब पेट भर गया, संतुष्ट हो गया, तो मन में ख्याल आया कि एक खाट मिल जाए जिसके ऊपर थोड़ा समय आराम कर लूं. और वो खाट भी उसे मिल गई. अब ये कहानी आप सभी ने सुनी हुई है और आप जानते हैं कि ये कहानी है किस वृक्ष की, एंड दैट इज कल्प वृक्ष. अब दोस्तों, मजेदार बात यह है कि हम ये कल्प वृक्ष को खोजने के लिए जाएंगे ना तो नहीं मिलने वाला है. क्योंकि सच तो ये है कि कमाल कोई वृक्ष का नहीं था, कमाल था उसके माइंड का. दोस्तों, यहां पर हम सभी के अंदर इतना अमेजिंग, जिसे मैं कहता हूं ऑटोमेटिक
अचीविंग मशीन, एक ऐसा पावरफुल मशीन नेचर ने हम सभी को दिया है कि जिस मशीन के माध्यम से हम जो उसके अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे लीना जी ने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट वाज कि बैक इन 2006 आप सभी जानते हैं द सीक्रेट के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई और उसके ऊपर जब बुक आई तो पता चला दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मैं ये बिलीव करता हूं फर्मली कि दैट इज यूनिवर्सल। ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं मानता। यार ऐसा थोड़ी होता है कि यार सोचे और सब होने लगे। ओके, नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी माने या ना माने, मगर अगर स्विच चालू है और आप वो प्लग पॉइंट के अंदर हाथ डालेंगे तो करंट लगना है। इट डज नॉट मैटर यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, राइट? इट वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करेगा। एग्जैक्टली वैसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि ग्रेविटी, अब जैसे कि मेरे हाथ में रिमोट है, अगर मैं उसे उछालूंगा तो नीचे गिरना, ये ग्रेविटी का कमाल है। मैं ग्रेविटी में मानूं या ना मानूं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ग्रेविटी 1687 में खोजा गया था। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2006 में रोंडा ब्रायन ने अपनी बुक के माध्यम से हमें बताया। लेकिन मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि ये जो 1687 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन खोजा गया था, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजा गया था, गुरुत्वाकर्षण, उससे पहले क्या लोग हवा में उड़ते थे? नहीं, राइट? तभी भी ग्रेविटी था, गुरुत्वाकर्षण था, लोग नीचे जमीन पर ही चलते थे। सो एग्जैक्टली वैसे 2006 में द सीक्रेट बुक आई, बट इसका मतलब यह नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब इन्वेंट हुआ था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज बीन इनटू एग्जिस्टेंस तब से जब से हम एग्जिस्टेंस में है। और इसे समझने के थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं द ग्रेट मैन स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कुछ बरसों पहले कुछ अमेजिंग बात कही थी। यहां पर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, डायरेक्टली मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये कमाल के शब्द है। अगर आपको पूरा द सीक्रेट फिल्म ना देखना हो या पूरी किताब ना पढ़नी हो तो ये शब्दों के अंदर आप पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां है सारी आपके अंदर मौजूद है, लेकिन ये तो आप है जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और रो रहे हैं कि अंधेरा है। ब्यूटीफुल लाइंस, राइट? आगे वो कहे कि आज हम जो भी है हमारे विचारों की वजह से है। तो ध्यान रखिए कि हम क्या सोचते हैं। शब्द जो है वो तो बाद में आएंगे, पहले विचार है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो विचार लंबा सफर करते हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी होगी, डॉक्यूमेंट्री, तो उसके अंदर आपने एक सीन देखा होगा कि जब भी कोई इंसान कुछ सोचता है ना तो उसके अंदर से कुछ वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं, राइट? सो यहां पर विवेकानंद ने कितने बरसों पहले ये बात बता दी थी कि जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार लंबा सफर करते हैं। आगे वो कहते हैं जब कोई एक विचार हमारे माइंड में बैठ जाता है तो वो एक भौतिक हकीकत या फिर एक मानसिक हकीकत बन जाता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कह रहे हैं कि जब कोई विचार हमारे माइंड में बैठ जाता है तब वो एक फिजिकल रियलिटी या मेंटल रियलिटी बन जाता है, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं फ्रूट में वो ही मिलते हैं एंड हम ही अपनी किस्मत को बनाते हैं। अब दोस्तों एक आम इंसान को हमेशा आपने कुछ ऐसा कहते हुए देखा होगा कि नहीं यार मेरी किस्मत में तो ये लिखी नहीं है, या फिर पता नहीं मेरी किस्मत में तकलीफें क्यों लिखी हुई है। लेकिन यहां पर विवेकानंद हमें यह कह रहे हैं कि भाई आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और ये जो आखिर की 2 लाइन्स है ना वो मेरी फेवरेट है, जिसके लिए ये मैं पूरी बात पढ़ रहा था। अब जो आखिर की 2 लाइन्स है वो है नन एल्स हैज द ब्लेम, नन हैज द प्रेज। मतलब कि आपकी जिंदगी को लेकर आपको किसी पर इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है, और ना ही अगर अच्छा होता है तो किसी की तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बाहर से आप कोई मदद नहीं मिलने वाली है। आप ही अपनी जिंदगी के रचनाकार है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अब दोस्तों यहां पर अगर ये कुछ लाइंस जो विवेकानंद जी ने बरसों पहले बताई है, अगर वो हम अपने अंदर बिठा देना तो मुझे नहीं लगता कि आज के प्रोग्राम के दौरान कुछ और सीखना बाकी है। बट कभी कभार इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट,
बट उसे सिंपल बना करके हमारी लाइफ में उसे हमें इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहां पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू फर्मली बिलीव कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है? यू कैन फिजिकली रेज योर हैंड तो मुझे पता चले। ओके, सो आई कैन सी बोथरा जी एंड नेहा है एंड संजय जी है, ईला जी है। ओके, एवरीबडी इज रेजिंग एंड थैंक यू सो मच। वर्षा जी है, हीरल जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अशोक कुमार जी है, थैंक यू गाइस, सुपर्ब। नाउ आप ये मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए? अब मैं दूसरा सवाल जो पूछूंगा उसमें मैं चाहता नहीं हूं कि आप हाथ ऊपर करें, ठीक है? बट वो सवाल मन में ही अपने आप से पूछ लीजिएगा कि जानते तो है पॉजिटिव थिंकिंग करना है, बट क्या हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर पाते हैं? सो दोस्तों, बात यहां पर यही है कि जानना और उस चीज को इंप्लीमेंट करना टोटली डिफरेंट है। एंड टुडे इन दिस 45 मिनट्स आई वांट टू मेक श्योर कि जब तक आज का सेशन हम खत्म करें ना, सभी इसके इंप्लीमेंटेशन तक पहुंच जाए, एक्शन तक पहुंच जाए, उसे अपनी लाइफ में सहजता से अपना सके। अब मैं आपको यहां पर दोस्तों एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कभी गौतम बुद्ध ने कहा था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप आज जो भी हैं वो आपकी जिंदगी के नतीजों की वजह से है। हाँ, ये आपने जो सोचा है वही नतीजे आपको मिले हैं। सो फ्रेंड्स, यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, सिंपल 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो वो 3 प्रिंसिपल जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अगर आज आपने ये समझ लिया तो एक तरीके से जब आप घर पे जब आप घर पे कोई भी एक खाने की डिश बनाते हैं और अगर उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, सीक्वेंस में डाले जाते हैं, अगर वो परफेक्टली समझ करके कोई दूसरा भी वो बनाए तो संभावना है कि काफी हद तक वो टेस्ट मिल सकता है। ओके, तो वही इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने हूं। 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जिसके माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वो मेजर इंग्रेडिएंट फॉर्मूला इज योर थॉट्स प्लस योर इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप जो सोचते हैं, जब वही इमोशन और फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट करते हैं और आप उसी के मुताबिक जब एक्शन लेते हैं, तो वो आपके लाइफ में एक हकीकत बन जाता है, मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये सुनने में कितना आसान है। I have been teaching about this subject, I guess from last 18 years now. और मुझे ये पता है कि जब मैं लोगों को ये सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ ना, पीपल गेट सो एक्साइटेड। अरे सर, इतना ही है, इतना सिंपल, मतलब मैं जो सोचूंगा, फील करूंगा, एक्शन लूंगा तो मेरी लाइफ में मुझे मिल जाएगा। हाँ, पक्का मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है दोस्तों कि हमें एक दिन में, एक दिन के दौरान 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। ओह यस। अब ये जो 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें रिसर्च ये कहता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन 2005 में ये प्रूव कर चुका है कि हमारे जो वो 60,000 विचार है ना पूरे दिन के, उसमें 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। यानी कि कल जो हमने सोचा 95% आज हम वही सोच रहे, और आज हम जो सोच रहे आने वाले कल में 95% वही सोचेंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं, यार लाइफ में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, बस वैसा का वैसा ही चल रहा है। बट दैट इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं ये जो 80% नेगेटिव थॉट्स है और ये जो 95% रेपिटेटिव थॉट्स है, अगर इस पैटर्न को ब्रेक ना किया जाए, देन नथिंग इज गोना हेल्प यू। अब सवाल खड़ा होता है यहां पर कि ये विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? वॉट ड्राइव्स आवर थिंकिंग प्रोसेस? अगर आज वो समझ लिया ना तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। एंड आई एम गोना गिव यू दैट अमेजिंग आंसर, बिकॉज आज मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं। मैं जब 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था, तब मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करना शुरू किया था। पिछले 25 सालों से इन माइंड एक्सपर्ट टू लैक्स ऑफ पीपल, और मुझे ये पता है कि अगर आप इसके वर्किंग को समझ पाएंगे ना कि ये थॉट्स आते कहाँ से है, तो उसे कंट्रोल करना एक्चुअली आसान हो जाता है। इट्स नॉट कि वो ऑटोमेटिक है, नो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। यू कैन कंट्रोल इट एंड यू कैन वेरी कंट्रोल इट। और उसके लिए मुझे छोटी सी कहानी आपको बतानी है। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, दुनिया के 2 सबसे सफल, सबसे अमीर, दुनिया के 2 दिग्गज, एक इंटरव्यू के में साथ में थे, और उन दोनों से इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा कि इंसान को सफल होने के लिए सबसे बड़ी कौन सी काबिलियत या कौन सी क्वालिटी की आवश्यकता है। दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर्स को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखा, और जब दोनों का आंसर ओपन किया गया
तो सेम आंसर निकल आया, और वो सिर्फ एक शब्द का आंसर था। जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बताते हैं कि इंसान को सफल होने की अगर कोई एक क्वालिटी चाहिए तो वो एक क्वालिटी है, एंड दैट इज फोकस। क्या है? मेरे साथ बोलना है आपको, क्या है? फोकस। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, जिस भी चीज पर हमारा ध्यान लगाते हैं, उस चीज को हम अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। एंड डोंट यू थिंक सो कि दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव? लाइक एक सुबह आपने यंगस्टर्स को आज देखा होगा, टीनेजर्स को, एक सुबह कहते हैं कि मम्मी पापा मैंने डिसाइड कर लिया है मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना चाहता हूं। और दूसरी सुबह, नहीं नहीं डैड मेरा गोल चेंज हो गया, मैं रणवीर सिंह बनना चाहता हूं, एक्टिंग करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं। सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट होते रहता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब कभी हमारी लाइफ बड़ी तकलीफें, बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उठा ले। और जब वो थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं उठाने का, क्योंकि आपने तो डिमांड किया ना, और कुछ बीमारी तकलीफ दे दे, और तब हम चले जाते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए, कैसे भी बचा लीजिए। सी द थिंग इज कि हमारा फोकस, हमारे जो थॉट्स है वो इतने वेग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट समवेयर हम उससे भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली डू वी वांट इन अवर लाइफ। दोस्तों, कैसी बात होगी पता है? लेट अस सपोज कि आप ड्राइव कर रहे हैं, और आप ड्राइव करने के बाद मुझे यह बताओ कि आपको जाना है कोई एक जगह पर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अहमदाबाद से निकला और मुंबई जाने के लिए निकला, लेकिन हर 5 मिनट के ऊपर मैं रास्ता बदल दूं और गोल बदल दूं, तो मुझे बताओ मुंबई कब पहुंचूंगा मैं? इज इट इवन पॉसिबल कि मैं कभी गलती से भी मुंबई पहुंच जाऊं? राइट? सो इसी के अंदर दोस्तों इसका राज छुपा हुआ है। लाइक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हम जो सोचेंगे वो होगा, हम जो महसूस करेंगे वो होगा, बट उसी के अंदर तो स्टेबिलिटी की कमी है। एंड देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। सी द रीजन कुड बी, आज गोल सेट किया आपने, डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, एंड नाउ द रीजन इज कि दूसरी सुबह पड़ोसी के साथ एक छोटी सी बहस हो गई, और उस बहस में हम इतने डप हो गए कि गोल बाजू पे रह गया, और विचार वही चलते रहे कि उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, उसने आज भी मेरे पार्किंग में पार्किंग किया कैसे। या फिर वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर एक छोटी सी कोई गलत कमेंट आ जाती है, एंड वी गेट सो मच डिस्टर्ब्ड आंसरिंग दैट नेगेटिव कमेंट और आर्ग्यूइंग विद द पर्सन कि जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं। कभी कभार सुबह जब चाय ठीक ना मिले ना, तो भी मूड खराब हो जाता है और गोल बाजू पे रह जाता है और विचार बदल जाते हैं। या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब इंडिया क्रिकेट मैच हारे ना, तो हमारे देश में आधे लोगों के गोल बाजू पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया क्रिकेट मैच हार गया, और उस दिक्कत में, उस हार की वजह से लोग अपनी लाइफ में जो वर्ल्ड कप अचीव करना था ना, उसे भी मिस कर जाते हैं। हमने वैसे 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, राइट? मुझे आज दिन तक उस कप को ना देखने को मिला, ना उस कप में चाय पीने को मिला। देन व्हाई शुड आई बी वरिड कि भाई मेरा देश जीते या हारे ना? आई सपोर्ट माई कंट्री, बट स्टिल उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे मैं अफेक्ट होने दूं मेरी जिंदगी को। फ्रेंड्स, सी वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी थिंग्स। टीवी सीरियल्स हमें इन्फ्लुएंस करती है, न्यूज चैनल्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 10 years आई गेस, मे बी मोर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूं। नाउ आई नो आप मुझे एक एक्सक्यूज देंगे कि नहीं नहीं सर, जानना तो पड़ा कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं भाई, अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है वो जानना काफी है। नहीं जानोगे कि दुनिया में क्या हो रहा है तो भी आजू बाजू बताने वाले लोग हैं। सी बिकॉज इफ यू जस्ट एनालाइज दिस पेपर, पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको डिवाइड करो, कौन से न्यूज ज्यादा है जरा ये तो बता दो। ओ यस, नेगेटिव। 80% न्यूज आर नेगेटिव। और पिछले 2 साल में क्या छपा है न्यूज़पेपर? हाँ, 2 लाख कोविड के केस, 4 लाख कोविड के केस, इतने गुजर गए, नया वेव आ गया। हद है यार। सी, ये कोविड के मामले में एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जिससे एटलीस्ट इससे तो हम बाहर निकल ही जाए। एंड आई बीन टेलिंग दिस फ्रॉम डे 1। दोस्तों,
आपको पता है जिस हफ्ते मेडिकल स्कूल में, सुनना ध्यान से, जिस हफ्ते मेडिकल स्कूल में पेट की बीमारियां, पेट की तकलीफों के बारे में पढ़ाया जाता है, उस हफ्ते ज्यादातर बच्चों को पेट की तकलीफें हो जाती है। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज दैट्स वॉट योर फोकस इज नाउ। और आप भी है ना, वो पढ़ाई के साथ फिर चेक करना शुरू करते, इधर दर्द हो रहा है तो ये होगा, इधर दर्द हो रहा है तो वो, अगर वो दर्द खड़े होने लगता है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, एक इंसान अपने गांव के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि यमराज जी गांव में जा रहे हैं, तो उसने यमराज जी को पूछा, यमराज जी आपका कैसे आना हुआ? तो यमराज जी ने कहा कि भी आपके गांव में 50 लोगों का वक्त आ चुका है, मैं उनको लेने के लिए आया हूं। तो वहां वो इंसान ने जाकर पूरे गांव वालों को मिल मिल के बता दिया, ध्यान रखना यमराज जी आए हैं, मौत आई है, संभालना। उस गांव में आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 1 महीने के दौरान 50 नहीं 500 लोग गुजर गए। अब ये इंसान यमराज जी को वापस मिला, मिल करके कहता है कि यमराज जी आपने ये सब क्या कर दिया, आपने झूठ कहा था, आप कहा था कि आप 50 को मारेंगे, हमारे गांव में 500 मर गए हैं, आपने मुझसे झूठ कहा। और तब यमराज जी ने कहा भैया मैंने 500 को नहीं मारा है, मैंने सिर्फ 50 को ही मारा है, लेकिन तुमने पूरे गांव में ढेरा पीटा कि मौत आई है, यमराज जी आए हैं, उसके डर में दूसरे 450 मर गए। I firmly believe what happens in any form of pandemic or any form of health challenges. कल संडे शाम को मैं एक अलग से सेशन रहा हूं, अब वो सेशन कुछ ही लोगों के लिए है, बट मैं पिछले 12 सालों से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूं जो कैंसर अवेयर के ऊपर काम करता है। एंड सारे कमिटी मेंबर्स ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर सर्जन्स, स्पेशलिस्ट, और उसमें मुझे उन लोगों ने चीफ एडवाइजर के रूप में रखा है। वो सारे दवाई ट्रीटमेंट के सारे डॉक्टर्स हैं, बट उन्होंने मुझे इसीलिए रखा है बिकॉज जब एक पेशेंट कोई भी बीमारी का सामना करता है तो दोस्तों उसे यहां से ठीक होना ज्यादा जरूरी होता है, फिर वो दवाई और ट्रीटमेंट भीड़ में काम करती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, सो गाइज कोविड है, थर्ड वेव हो सकता है, ओमिक्रॉन हो सकता है, वट एवर दैट माइट बी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम जो कर सकते हैं उस पर फोकस करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, जो हम कर सकते हैं करो, बट देन डोंट लिव हियर। और पढ़ना तो बंद ही कर दो कि कितने केस है और क्या हुआ और ऐसा क्यों और वैसा क्यों। आई डोंट रीड, आई ओनली रीड जो मेरे काम की चीजें हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, बात इतनी सिंपल सी है यहां पर, एंड दैट इज कि एक्सटर्नल जितने भी फैक्ट है जो आपके थिंकिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपके फोकस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे ऊपर उठने का वक्त आ चुका है, वरना पता है क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। एक इंसान, उसने बहुत ज्यादा साधना करी, प्रार्थनाएं करी, भगवान प्रसन्न हुए, पूछा बता मांग क्या चाहिए। उसने कहा भगवान जी मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपके घर को देखूं, यानी कि जन्नत में, स्वर्ग में जहां पर आप रहते हैं, उसका एक राउंड लेना है, मुझे एक टूर लेनी है, आई वांट टू सी हेवन। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, आई एम इंप्रेस्ड बाय यू, तूने इतनी साधना करी है, मेरी भक्ति करी है, तो ग्रांटेड, तथास्तु। तो उसको वो फ्री टूर मिला। अभी जो फ्री टूर उसको मिला हेवन का, तो उस टूर के लिए अब अगर ये दुनिया बढ़िया सी हो सकती है तो हेवन कैसा हो सकता है, तो उसके लिए भी वहां पर एक टूर गाइड थे। तो वो टूर गाइड पहले उसे वेलकम करते हैं और अलग अलग जगह दिखाना शुरू किया, पूरा जनवे यहाँ पर ये है वो है, सारी अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे थे। उसमें एक जगह आई और जिधर उसने देखा कि दूर दूर तक है ना गिफ्ट्स पड़ी है, गिफ्ट्स, तोहफे। ओके, सो देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, और मतलब दिखाई ना देना उतनी दूरी तक गिफ्ट्स पड़ी हुई है। तो उसने पूछा, जो टूर गाइड थे उससे पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, इतने सारे तोहफे किसके लिए है? उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया, नाउ लिसन केयरफुली गाइस, पूरे फोकस के साथ। वो जवाब देते हैं कि ये जो तोहफे हैं, ये सारे तोहफे भगवान ने ग्रांट किए हुए हैं इंसानों के नाम पर, हर एक के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। बोले अच्छा ऐसा, फिर वो तोहफे यहां पर क्यों है? बोले वही तो प्रॉब्लम है कि जब इंसान ने कुछ चाहा,
जब इंसान ने कुछ प्रार्थनाएं करी, जब इंसान ने कुछ सोचा, तो हर एक चीज को देने एक पीरियड होता है जिसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना ये क्या होता है, क्योंकि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब सिखा रहा हूं। जेस्टेशन पीरियड मतलब अगर एक कैरेट है तो एक गाजर फॉर एग्जाम्पल 30 दिन लगते हैं बनने में, आप काटो उसके बाद नया बनने में, या फिर एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं मां की कोख में इस दुनिया में उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी कि हर एक चीज का एक सही वक्त होता है जो वो लेता है मैनिफेस्ट होने के लिए। तो बोले जब लोगों ने प्रार्थनाएं करी, इच्छा रखी, भगवान ने ग्रांट तो कर दिया था, तोहफे रेडी कर दिए थे, लेकिन वो तोहफे यहां पर इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसका जो जेस्टेशन पीरियड था ना, कि भी उसको महीने के बाद देना था, 2 महीने के बाद देना था, 2 दिन के बाद देना था, बोले तब तक उसके विचार ही बदल चुके थे, उसका फोकस ही बदल चुका था, और इसलिए ये सारे तोहफे यहीं पर पड़े हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस। जैसे आप सभी टेक्नोलॉजी सब वाकिफ है, टुडे यू आर अटेंडिंग मी ऑन जूम, राइट? वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में है, वरना पता नहीं ये 2 साल लॉकडाउन में कैसे गुजर पाते। बट इंटरनेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी, सो मेनी अमेजिंग रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज आर देयर अराउंड अस। बट टेक्नोलॉजी के लिए जैसे कहा जाता है ना कि वो अच्छा भी है बुरा भी है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करें, इट्स ग्रेट, राइट? इफ यू यूज इंटरनेट फॉर लर्निंग इट्स ग्रेट, मगर वही इंटरनेट को आप टाइम पास करने के लिए यूज कर रहे हैं या कोई गलत चीजों को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, देन इट्स अ वेस्ट। तो एग्जैक्टली वैसे हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। माइंड इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू यूजिंग फॉर माइंड, योर माइंड फॉर? आप अगर यूज कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, देन इट्स ग्रेट। और वो टूल जो माइंड नाम का टूल हमें मिला है, वो जिंदगी जीने के लिए मिला है, बेहतर बनाने के लिए मिला है, दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए मिला है। आई एम सीइंग सो मेनी रोटेरियंस हियर एंड आई नो दिस वेरी वेल, बिकॉज मैं भी कभी छोटा छोटा रोल प्ले कर चुका हूँ अलग अलग रोटरी क्लब्स के अंदर की, जहां पर मुझे मौका मिला है कुछ शेयर करा। तो मुझे पता है कि आप सारे रोटेरियंस कितना अमेजिंग काम करते हैं सोसाइटी के लिए। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी हमें जो ये माइंड मिला है उसके माध्यम से हमें अपनी जिंदगी को बेहतर करना है और लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है। उसके लिए पहले हम अपनी यहां की उलझनों से बाहर निकले तो कुछ करें ना। It's like you can give happiness only if you have happiness. You cannot give something which you don't have. If you don't possess it, you cannot give it. You can share it, right? So if you want to give positivity, तो आपको भी पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए ये जो 60,000 विचार अंदर चल रहे हैं और ये जो कंफ्यूजन स्टेट बहुत बार चलते रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर एक छोटी सी टेक्निक देना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू नो दैट? वुड यू लाइक टू नो कि कैसे हम अपनी एंग्जाइटी लेवल को कम कर सकते हैं? वुड यू लाइक टू नो कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है? लाइक टू नो कि कैसे हम और ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं? ठीक है, फिर तो चलिए गाइस, यहां पर अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मैं 4 स्टेप फॉर्मूला आपको देता हूं। ये चारों स्टेप अलग है लेकिन बहुत काम के हैं। सो नंबर 1 टू स्टार्ट विथ एक्ट टू कंट्रोल योर माइंड, जो आपको करने की आवश्यकता है वो है गैजेट फास्टिंग। ये मंगलवार का उपवास नहीं है, शनिवार वाला उपवास नहीं है, ये है कि भाई पास जो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल जो अवेलेबल है उसको हम गैजेट कहते हैं। तो गैजेट का हमें एटलीस्ट कभी कभार फास्टिंग करने की जरूरत है, या दिन में 1-2 घंटे ऐसा भी होना चाहिए कि जब हम उसे टोटली बंद करके, साइलेंट करके या कहीं दूसरे रूम में रखे हुए हैं एंड हम थोड़ा सा उससे बचकर रह रहे हैं। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट, सी हमारे मोबाइल अंदर एक जो नोटिफिकेशन वाला रेड डॉट होता है ना, हमने देखा होगा, जैसे व्हाट्सएप आता है, कुछ भी आता है, वो रेड डॉट ब्लिंक कर, एंड भले वो बाजू पर है, भले साइलेंट, वो नजर भी वहां पर पड़ती है जिस काम में आप है ना एंग्जाइटी, थॉट्स शुरू, किसका मैसेज होगा, उसका रिप्लाई है या उसका नहीं नहीं ये ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि समवेयर वो उसको बढ़ा रहा है। पहले तो अपने माइंड को शांत करना जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं क्या वो सोचे जो आप प्रोड्यूस कराते अपनी जिंदगी में, जो आप आकर्षित करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो पहले विचारों को कम करने की जरूरत है। सो द पॉइंट इज थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। आई एम नॉट सेइंग कि उसके बिना जीना है, बट आई एम श्योरली सेइंग कि कभी कभार थोड़ा सा उसे दूर रख लेना इंपॉर्टेंट है। संडेज है, अगर काम से दूर है
तो अगेन वो एक बहुत अच्छा दिन मिल सकता है कि जब आप मोबाइल्स को साइड पे रख सकते हैं, या जब आप अपने फैमिली के साथ है या डिनर टेबल पर है तब आप अपने फोन्स को दूर कर सकते हैं, राइट? सो गैजेट फास्टिंग, दैट्स नंबर 1. फॉर सेकेंड पॉइंट वुड बी बीइंग इन नेचर. जब कभी भी मौका मिलता है थोड़ा सा कुदरत के बीच चले जाइए और वहां पर वक्त बिताइए. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन में जा सकते हैं. कभी कभार मॉर्निंग सन को, सूरज उठे उससे पहले उठ मॉर्निंग सन को देखना, या 6 महीने में एक आध बार कहीं कोई नेचर के बीच घूमने चले जाना. नाउ दैट कुड बी माउंट आबू, दैट कुड बी लोनावाला या महाबलेश्वर. सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई बड़े खर्चे कीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कभी कभार हमारा फ्यूचर है ना, एक जो विजन है हमारा कि यार वीकेंड हाउस होना चाहिए, अपना एक फार्म होना चाहिए, राइट? सो एक वीकेंड हाउस की जहां पर में हम हफ्ते में एक आध बार जा सके, या वीकेंड हाउस भी नहीं है तो दोस्त यार का भी होगा ना, कोई बात नहीं, वो लोग इस्तेमाल नहीं करते चाबी, हफ्ते में एक बार जा सकते हो. सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टेक अ ब्रेक, बिकॉज जब नेचर के बीच में जाओगे ना ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे. यू वुड हैव एक्सपीरियंस कि जब आप ऑफिस में है, लोगों के बीच में है, बट ऑब्वियस तब का एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई रहता है. एंड व्हेन यू आर इन बिटवीन नेचर, आप शांत होने लगते हैं. ठीक है? थर्ड, एंड दैट इज साइलेंस. अगेन, जब भी मौका मिलता है पूरे दिन में एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट भी साइलेंस को अपनिए, बिकॉज सी साइलेंस विल लीड टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसे मैं कहना चाहूंगा, एंड दैट वुड बी मेडिटेशन. डायरेक्टली मेडिटेशन करने जाओगे ना तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है कुछ लोगों को. इसीलिए मैं पहले ये कह रहा हूं कि जस्ट यू डोंट नीड टू सिंपली क्लोज योर आइज. व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप एटलीस्ट पहले साइलेंस में आइए 10-15 मिनट, उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड धीरे धीरे उसे मेडिटेशन में कन्वर्ट कीजिए. ओके, बट इफ यू आर ए मेडिटेटर, आप काफी वक्त से मेडिटेट करते हैं, देन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो ये 4 तरीके हैं कि जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते, अपने विचारों को कंट्रोल में ला सकते हैं और आप अपने विचारों से सभान हो सकते हैं. सी, कभी कभार मुझे लोग कहते हैं मेडिटेशन के, सर आई मेडिटेट बट मुझे है ना बहुत विचार आते हैं, सर मैं ना खो जाती हूं. ओके, वेरी गुड. पता तो चला कि खो जाती हूं. अभी विचार आ रहे हैं, पता चल रहा है? नहीं, मेडिटेशन में पता चला. वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एहसास कि मैं खो गया, जिस क्षण पे ये पता चलता है कि मैं खो गया, उसी क्षण पे आप वापस चले आते हैं. समझ रहे हैं? और इसीलिए वो एहसास भी बहुत जरूरी है. तो ये 4 स्टेप्स अगर आपने लिखे नहीं है तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अब एक बार जब आपके माइंड को कंट्रोल में आप ला रहे हैं, जब आप थोड़ा फोकस थिंकिंग में आ रहे हैं, तो दोस्तों जो चीज आप आकर्षित करना चाहते हैं, अब इसी पावर को यूज करो, अपने माइंड की एबिलिटीज को यूज करो, एंड दैट इज टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, फोकस जहां पर जाएगा एनर्जी वहीं पर जाएगी. फोकस जहां पर जाएगा एनर्जी वहीं पर जाएगी, और जहां पर आपकी एनर्जी जा रही है उसी चीज को आप आकर्षित करने वाले हैं. सो मेरे जिंदगी रोल मॉडल हमेशा ये बात कहते हैं, टोनी रॉबिन्स, वेयर योर फोकस गोस योर एनर्जी फ्लोज. सो ऑलवेज रिमेंबर, फोकस फोकस एंड फोकस. लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है पता है, हमारा फोकस ज्यादातर समय कहां पर है? प्रॉब्लम, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये परेशानी है. ओके, अगर फोकस प्रॉब्लम के ऊपर है तो एनर्जी किसको दे रहे हो? प्रॉब्लम को. अच्छा, एनर्जी प्रॉब्लम को दे रहे हो तो आकर्षित क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम को. सी, योर माइंड और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. वो तुम्हें वो दे रहा है जिसके ऊपर तुमने फोकस किया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो. सो इफ यू आर फोकस, यार आज तो बहुत ट्रैफिक है, मेरा फ्लाइट ना हो जाए, तथास्तु. सी, जिस पर फोकस हो रहा है वो आप आकर्षित कर रहे हैं. और इसीलिए आपको दोस्तों अपने फोकस को प्रॉब्लम से लेकर जाना है सॉल्यूशन के ऊपर. आपका 10% थिंकिंग ही प्रॉब्लम के ऊपर और 90% थिंकिंग होना चाहिए, एंड दैट इज सॉल्यूशन के ऊपर. सो काफी लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड इन टर्म्स ऑफ, अरे यार ये प्रॉब्लम है, अरे यार ऐसा हो गया, अरे कैसे मैनेज करेंगे. ओके, फॉरगेट इट. पहले एक्सेप्ट कर लो तुरंत ही. ओके, दिस इज द सिचुएशन, एक्सेप्ट इट. और एक्सेप्ट करके अब उसको एनर्जी देने के बजाय उस चीज एनर्जी दो ना कि इसमें से बाहर कैसे निकले, इसका रास्ता क्या है, कौन मदद कर सकता है,
किसको कांटेक्ट करूं? कभी कभार तो सिर्फ फोन बुक खोलते हैं ना अपने मोबाइल की, तो भी दो चार ऐसे नाम दिख जाते हैं, हाँ यार ये मेरी मदद कर सकता है, चल उसको फोन करता हूं, राइट? सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रेदर देन बीइंग विद द प्रॉब्लम। ओके, सो सेकंड, क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो। यार मुझे ऐसा फैमिली क्यों मिला है जो मुझे समझता नहीं है, या फिर यार मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करे करियर के लिए, या जहां देखो वहां ये ओमिक्रॉन क्यों बढ़ रहा है। सी, इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट, यार मेरे पास ये इतनी पुरानी गाड़ी क्यों है, यार मेरी इनकम लो क्यों है, अगर यार मैं इस जॉब में क्यों फंसा हुआ हूं, यार मेरे बिजनेस में मेरे जितने कस्टमर है वो मेरे को पैसा क्यों नहीं दे रहे, यार मेरा मतलब टाइम पे पैसा क्यों नहीं चुका रहे। इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट, यू कैन अट्रैक्ट इट मोर, को और ज्यादा ऐसे ही कस्टमर्स मिलने वाले। सो व्हाट यू नीड टू डू इज फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जो नहीं चाहिए छोड़ो, जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। अब छोटा सा एग्जांपल, जब कोई मुझे आकर कहता है मेरे सेमिनार्स में, मेरे वर्कशॉप्स में, सर मुझे है ना 10 लाख का बड़ा लॉस हो गया, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, क्या करूं? नाचू? नहीं करूं क्या? वाई द हेल आर यू शेयरिंग प्रॉब्लम विथ मी? तेरी गलती, तेरे डिसीजंस भुगत, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पास्ट है। भगवान राम और कृष्ण भी जो हो चुका, सीता का हरण और द्रौपदी का वस्त्र हरण, उसे तो वो भी नहीं बदल पाए, तू जो हो गया है वो मुझे बता रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू मुझे ये बताए, सर मैं आपके पास इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे 10 लाख जल्द से जल्द कमाने हैं, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अ सोल्यूशन, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, हाँ तो उसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। सो सिंपली शिफ्ट योर फोकस, प्रॉब्लम थिंकिंग से सोल्यूशन थिंकिंग पर आइए, आई डोंट वांट से बाहर निकलिए, आई वांट पर आइए, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल। सो फ्रेंड्स, जस्ट डोंट बी इन डायलेमा। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं पता है, हमारे अंदर है ना 2 पर्सनालिटीज है, और वो 2 पर्सनालिटीज में होता है, एक पर्सनालिटी सोचती है, ये सारा सेमिनार और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हम अंदर की एक पर्सनालिटी है जो सोच रही है यार अब तो अपने ना 100 का बिजनेस बना के रहेंगे, और अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी है, कैसे होगा भाई, इम्पॉसिबल है। ओके वेट गाइस, कैसे होगा, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। हेलो, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करो, नेचर को, कुदरत को, ईश्वर को यह बताओ कि तुम्हें चाहिए। कैसे, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, और सच ये है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let's go. But for that you have to decide. हाँ, अब जब मैं ये डिसाइड करने के लिए कह रहा हूं, आई एम गोना गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। बैक इन 2000 जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक, तब अमेजॉन अच्छा था, सक्सेसफुल हो गया था, तो उनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर आप ये ई कॉमर्स वेबसाइट में ना होते, अमेजॉन ना बनाया होता, तो आप क्या करते? और तब बंदे ने पता है क्या बोला था? उसने कहा था तो मैं शायद स्पेस में जाता, अंतरिक्ष में, और कुछ उधर रिसर्च करता। अब मजेदार बात यह थी, तब 2000 के साल में जब यह इंटरव्यू हुआ था, तब सब ऑडियंस और इंटरव्यूअर उसके ऊपर हंसे थे, क्योंकि एवरीबडी थॉट कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। एंड नाउ लेट मी टेल यू दिस, इन द ईयर 2020, 20 साल के बाद वो जेफ बेजोस ने सच दिखा दिया। कोई कहे बात सिंपल है यार, बड़ा सोचो, उसे बताओ क्या चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो
करके देंगे। नो नो नो, देयर इज अ डिफरेंस हियर। सुनो, मैं डिफरेंस समझाता हूं। अगर आप ये सोच रहे कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हम मंदिर में जाए और मंदिर में जाके अपने भगवान को ये कह दे कि भगवान प्लीज मेरा वजन कम करवा दो, तो क्या सर उससे मेरा वजन कम हो जाएगा? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। भगवान आपके लिए जॉगिंग करने को नहीं जाने वाले और वो आपके लिए डाइट फॉलो नहीं करेंगे। नो, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सी, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता, तो वो चाहते तो चुड़ी बजाकर पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो लड़ाई थी अर्जुन की। तो मुझे बताओ, लड़ेगा कौन? अर्जुन। बस एग्जैक्टली वैसे ये जिंदगी है हमारी, लड़ेगा कौन? हम खुद ही लड़ेंगे। बट देर आर 3 सिंपल स्टेप्स। उन्हें जो करना था उन्होंने सारी काबिलियत अंदर भर के दे दी, और वो 3 सिंपल स्टेप मैं आपको आगे बता चुका हूं। कौन से 3 स्टेप? उस चीज के ऊपर सोचना शुरू करो, उसके लिए पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करो, उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। यू नो, मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब कोई कहता है कि सर क्या भगवान मेरे लिए कुछ करके देंगे, मैं बता दूं वो आपके लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाने वाले, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी जो काबिलियत भरी हुई है, वो इतनी ज्यादा है that he has given more than sufficient to each and one of us. There is no partiality anywhere. Let's go. It does not matter. It does not matter कि आपका जन्म किस गांव में हुआ था. It does not matter कि आप किस साल में पैदा हुए थे. It does not matter कि आपका जन्म का तारीख क्या है. It does not matter कि आपकी कुंडली क्या है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म का तारीख और जन्म का समय क्या है या आपकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि मुझे इतना समझ आता है कि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो वो कोई फालतू या कोई बेकार चीज कभी बना ही नहीं सकते हैं. We all are special and we all are blessed. लेकिन अगर आज हमारी जिंदगी दोस्तों, या तो हम इसमें खुश हैं या तो हम नाखुश, या तो हम खुश हैं या तो हम नाखुश हैं. तो क्या कितना सिंपल है पता है? आप खुश कब होते हैं? जब आपने जो चाहा आपकी जिंदगी में होने लगे तो आप खुश. आपने जो चाहा ना हो तो आप नाखुश हैं. ठीक है? सो समवेयर वी वॉन्ट पर्टिकुलर रिजल्ट्स. अगर हमें कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको, मुझे बताओ कि अगर मैंगो चाहिए तो बीज किसका डालना पड़ेगा? चीकू का? एप्पल का? नहीं. मैंगो चाहिए तो मैंगो का बीज डालो. सी, इफ यू वॉन्ट डिफरेंट फ्रूट्स देन व्हाट यू हैव नाउ, देन डोंट फोकस ऑन द फ्रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स. रूट्स क्या है? हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स. फ्रूट्स क्या है? रिजल्ट्स. अगर रिजल्ट्स चेंज करने हैं तो रूट्स के ऊपर फोकस करो. अब यहां पर मैं आपको, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है. आई वाज गिवन 45 मिनट्स और मैंने जब से शुरू किया तब से लेकर 40 जा चुकी है, इनकेस आपको ना पता हो तो. सो फ्रेंड्स, यू नो, आखिर के इस 5 मिनट के दौरान मैं आपको 5 सिंपल से स्टेप्स देना चाहूंगा कि जहां पर आप ये 5 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करते हुए पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर पाएंगे. लीना जी, इफ यू गिव मी परमिशन, कैन आई एक्सटेंड फॉर मोर 5 मिनट्स? 10 मिनट्स इज ओके? मैंने इसीलिए मैं अपने आप को अनम्यूट किया कि हमने 10 मिनट लेट शुरू किया था. यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन. मुझे लगता है सबको मेस्मराइज किया. यू कैन कंटिन्यू. या Thank you. So nice of you. So nice of you. Thank you so much. All right. So 5 सिंपल से स्टेप्स है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. नंबर 1 स्टेप, एंड दैट इज, सबसे पहले क्या चाहिए उसका लिस्ट बना दो. इसे मैं कहता हूं गोल्स का लिस्ट. अगर पता ही नहीं है कि क्या चाहिए तो ना आपका माइंड उसके ऊपर फोकस कर पाएगा और ना ही ईश्वर, भगवान, परमात्मा आपकी कोई मदद भी कर पाएंगे. सो पहले लिस्ट बनाओ कि क्या चाहिए. काफी सारे लोग हैं ना, बहुत ज्यादा आलस करते हैं ये लिस्ट बनाने में. I'll give you a real life example. 1979 की बात है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था. जितने सारे बच्चे थे उनमें से चेक किया गया कि कितने बच्चों की जिंदगी में गोल्स हैं, और नतीजा यह मिला था कि देयर वर ओनली 3% किड्स कि जिन्होंने अपने गोल्स को स्पेसिफिकली लिखा था, लिख करके अपने सामने लगाया हुआ था. बाकी 97 कैसे थे पता है? 97% दे वर लाइक, किसी ने कुछ नहीं सोचा, मालूम नहीं गोल क्या. किसी ने थोड़ा बहुत मन में सोचा, शायद ऐसा करूंगा, शायद वैसा करूंगा. बट वो 3% ही थे जिन्होंने स्पेसिफिक गोल सोचा,
टाइमलाइन दिया, कागज के ऊपर लिखा और सामने लगा के रखा। और 10 साल के बाद इन बच्चों के साथ वापस रिसर्च हुआ था 1989 में, 10 साल के बाद, और यह हार्वर्ड का रिसर्च था। और रिजल्ट आया था कि 1989 के अंदर यह पाया गया कि वो 3% जिनके गोल स्पेसिफिक थे, गोल सामने लगा के रखे हुए थे, लिखे हुए थे, वो 3% बच्चे, बाकी सारे 97% बच्चों की सफलता, इनकम, सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए ना, 97% बच्चों की, तो ये 3% वो 97% से 10 गुना ज्यादा सफल थे और ज्यादा कमा रहे थे। इसी के अंदर ये राज छुपा हुआ है कि दुनिया में 97% लोग, जो पैसा है वो 3% लोगों के पास क्यों है, और वो 3% का जो पैसा है वो 97% लोगों के पास क्यों है। ओके, सो इट इज नॉट अबाउट कि रिच आर डूइंग सम काइंड ऑफ कल्ट, यू नो, कुछ वो अमीर लोग हैं ना, बहुत बुरे लोग हैं साले, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गरीबों को गरीब बना रहे। नो, सी इट डिफाइंस कि भाई ये तो सबके पास था, बस इसका यूज क्या हो रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों, जिसने गोल सेट किया है, जिसने कागज पे लिखा है, जिसने लगा के रखा है, उसने अचीव किया, तो आप भी करो, कोई मना नहीं कर रहा। डू इट। आई वॉज 17, मैं 17 साल का था जब मैंने किराए के मकान से अपने करियर को शुरू किया था। मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 50-60 लाख के बराबर होगा। और तब मैंने सबसे पहला काम क्या किया था पता है? 4 दिन अकेले बैठ के 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था कि भाई मुझे मेरा फ्यूचर कैसा चाहिए। मैंने सोचा ही नहीं कि भाई ये कैसे अचीव करूंगा, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, वो उसका प्रॉब्लम है, डिसाइड तो करो। अब जो वो 17 साल की उम्र पे मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था, विथ गॉड्स ग्रेस और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जब तक मैं 26 साल का था वो 101 के लिस्ट को मैं पूरा कर चुका था। किराए के मकान से 17 साल की उम्र पे शुरू किया था। एंड राइट, आई एम 34, मैं 34 साल का हूं। अगर लगता नहीं हूं तो थैंक यू सो मच। और मैं 34 साल की उम्र पर अभी 11 बिजनेसेस ऑपरेट करता हूं और 100 करोड़ की नेटवर्थ को मैंने क्रिएट किया है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई किस्मत वाली बातें नहीं है। इट इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल जो आज आप सीख रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि गोल में लिखो कि आपको भी वो 100 करोड़ का नेटवर्क चाहिए, या लिखो मर्सिडीज चाहिए, या लिखो कि ये वाला जॉब चाहिए, जो चाहिए। सी, इट इज नॉट अबाउट 100 करोड़। हर एक की विशेष अलग होगी, हर एक का फोकस अलग होगा, सबके लिए अलग है। दैट्स ओके। आपका अगर ये विश है कि भाई मैं हेल्दी होना चाहता हूं, इट्स ओके। आपका ये विश है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कहीं आगे बढ़ना चाहता हूं, इट्स ओके। आपका ये विश है कि 1 लाख जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, डजंट मैटर, वो गोल भी तो डालो, लिखो तो सही। पीपल दे डोंट राइट, दे आर लेजी टू राइट। बट कभी कभार डर इसलिए लगता है कि अगर अचीव नहीं हुआ तो। और मैं ये कहता हूं दोस्तों कि अगर लिख डाला कि 1 लाख लोगों को खाना खाना है, अचीव नहीं भी हुआ, अचीव नहीं भी हुआ, तो भी भले 20,000 को खिला पाए, 50,000 को खिला पाए, तो भी सही रास्ते पर तो चल रहे हो। सो डोंट वरी। सो दोस्तों, पहला था लिस्ट बनाइए। दूसरा, जो लिस्ट बनाया उसको विजन बोर्ड में कन्वर्ट करो। विजन बोर्ड का मतलब होता है कि उस चीज के फोटोग्राफ्स लगाओ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस, पिक्चर्स की भाषा समझता है, पिक्चर्स, ओके। और इसीलिए उसको फोटोज, उसे पिक्चर्स दिखाना जरूरी है। सो इफ यू वांट बाय अ पर्टिकुलर कार, तो उस गाड़ी का फोटो लगा दो। इफ यू वांट इमिग्रेट, लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट होना चाहते हैं, या कोई कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसका फोटोग्राफ लगाओ। जो चाहते हैं पिक्चराइज करो उसे। उसे एक चार्ट पेपर ले लो या एक बोर्ड जैसा कुछ ले लो और उसके ऊपर उन चीजों के फोटोग्राफ्स लगा दो जो आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज हमारा माइंड पिक्चर्स की लैंग्वेज को समझता है। वो विजन बोर्ड कुछ ऐसा दिख सकता है जैसे आपके स्क्रीन पर फिलहाल है, समथिंग लाइक दिस, ओके। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके लाइफ के, सभी गोल्स हो सकते हैं, 5-10 गोल्स भी हो सकते हैं, 50-100 गोल्स भी हो सकते हैं, चॉइस आपकी। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। लिस्ट बना दिया, गोल्स के पिक्चर्स लगा दिए, अब थर्ड पॉइंट है उसे विजुअलाइज करो। यानी कि जो मैंने आगे आपको मेडिटेशन कहा था, इफ यू कैन मेडिटेट ग्रेट, इफ नॉट
तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट जब मौका मिले आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सिंपली विजुलाइज करो कि मैंने उस चीज को पा लिया है। पाऊंगा नहीं, कभी होगा नहीं, अभी अभी इसी समय हो चुका है। उस विजुअलाइजेशन के अंदर, उस इमेजिनेशन के अंदर जितने हो सके उतने फीलिंग्स ऐड करो, इमोशन ऐड करो। जितनी खुशी उस गाड़ी को खरीदने पर होगी उतनी खुशी अभी होनी चाहिए व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग कि आपने अपनी नई गाड़ी खरीदी है। सो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन जो है वो इतनी पावरफुल है दैट बड़े से बड़े फेमस लोगों ने भी अपनी जिंदगी के लिए बताया है इसके बारे में। Akshay Kumar has used visualization. Deepika Padukone has used visualization. Even Sachin Tendulkar has used visualization. Sachin जब कभी भी बैटिंग में जाते थे उससे पहले 2-5 मिनट आंखें बंद करके बैठते थे और आंखें बंद करके विजुअलाइज करते थे कि मैं सेंचुरी मार रहा हूं। मुथैया मुरलीधरन जो हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं एज अ बॉलर, श्रीलंकन बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं हमेशा विजुअलाइज करता था बॉलिंग से पहले कि आज मैं 5 विकेट ले चुका हूं। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट हैज यूज्ड विजुअलाइजेशन फॉर देयर लाइव्स। एंड फ्रेंड्स, ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस पूरे दिन में जब कभी 2-3 मिनट का वक्त मिलता है, डू इट। इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। इसका लॉजिक क्या है, आपने सबने वैक्सीन ले लिया, ओके गुड। वैक्सीन जो है वो बाहर से आने वाले वायरस के सामने आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है, जो डाउट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हार रही है, जो रिजेक्शन आ रहा है, उसका वैक्सीनेशन कहां है? ओके, उसका वैक्सीनेशन है एंड दैट इज योर मेंटल विजुअलाइजेशन प्रोसेस। जब आप पूरे दिन में 2-5 मिनट भी ये विजुअलाइज कर लेते हैं कि मैं ये बन चुका हूं, मैंने ये पा लिया है, ये हो चुका है, ये मैं कर चुका हूं, अब क्या होगा कि बाहर से कोई कहेगा स्नेह तेरे से नहीं होने वाला, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक पिक्चर चल रहा है। फिर कोई बुरा रिजल्ट मिला एंड आई बी लाइक इट्स ओके, डजंट मैटर, मैं तो अचीव कर चुका हूं। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है मुझे इंपैक्ट करना धीरे 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 रिड्यूस होने लगेंगे। जितना ज्यादा मैं हर दिन विजुअलाइज करूंगा और मेरे माइंड का पिक्चर जितना क्लियर होते जाएगा और जितना मैं उसे बिलीव कर जाऊंगा, उतना बाहर से जितना कचरा आ रहा है और जितना मेरी थाली में जहर परोसा जा रहा है शब्दों के माध्यम से, मैं उससे प्रोन होने लगूंगा, मैं इम्यून होने लगूंगा। Okay? So that's your mental vaccine every day. Okay? See, at times मेरी टीम, मेरा फैमिली मुझे काफी बार ये कहता है, इसने तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वो ये बोल गया, इसने तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा लॉस हो गया। मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट, आई एम सीइंग समथिंग एल्स, आई एम लिविंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई एम लिविंग अ डिफरेंट रियलिटी, और उसी को मैं क्रिएट करता हूं बिकॉज मुझे पता है कि अगर उसका इंपैक्ट मैंने ले लिया तो मेरी वो रियलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और मैं ना उसके एक्शंस ले पाऊंगा ना उसके करीब जा पाऊंगा। राइट नाउ द फोर्थ थिंग एंड दैट इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर सुबह जब आप उठते हैं तब आपको उठ करके अपने गोल्स को पढ़ना है और पढ़ करके आपको पूछना है अपने आप से कि आज मुझे ये गोल्स अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है। मैंने यहां ना 3 चीजें बताई थी, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। अब ये एक्शंस वाला पॉइंट आया कि अब आपने वो लिस्ट बना दिया है अपने गोल्स का, तो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट डे आप वो लिस्ट पढ़ेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि मुझे आज क्या करने की जरूरत है इस गोल्स को अचीव करने के लिए। और जो आंसर मिले, आज मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत है, आज मुझे उससे मिलने की ज़रूरत है, आज ये डील क्लोज करने की ज़रूरत है, आज वो 4 अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, 10 फोन कॉल करने की ज़रूरत है, वॉट एवर दैट माइट, ओके डू इट। वो जो आइडियाज आ रहे हैं पेपर पे डालो, एक्शन लेना शुरू करो। और जब रात को अब घर आ रहे हो, ठीक है, यानी कि घर पे आए और बिफोर यू गो टू बेड
तो सोने से पहले एक और सवाल आप करोगे, वापस एक और बार आप अपना गोल्स का लिस्ट पढ़ो। रात को सोने से पहले वापस एक और बार आप अपना गोल्स लिस्ट पढ़ोगे और अपने आप से पूछोगे, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया इस गोल्स को अचीव करने के लिए? क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया इस गोल्स को अचीव करने के लिए? एंड आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 से 5 दिन भी यस में आंसर ले, बट ऑनेस्ट वाला, बिकॉज ये फेसबुक पर स्टेटस डालने के लिए नहीं करना था। ये ऑनेस्ट वाला यस होना चाहिए, विच यू आर आस्किंग योरसेल्फ। और अगर वो 4 से 5 दिन भी आपको यस मिल जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपके एक्शंस भी सही जा रहे हैं। सो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। क्या करना था? गोल्स का लिस्ट बनाना था, उसे पिक्चर्स में कन्वर्ट करना था, हर दिन उसके अंदर फीलिंग ऐड करने थे विजुअलाइजेशन में। सुबह उठ करके पूछना कि इसको अचीव करने के लिए आज मुझे क्या करना है। और रात को सोने से पहले, डिड आई गिव माई बेस्ट? क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया था? एंड इफ द आंसर इज यस, यू आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक माय डियर फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। सी, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई टीचर, कोई गुरु की जरूरत है। इफ फॉर एवरी डे, एवरी मूवमेंट आप मोटिवेशन की राह देखोगे, तो है ना पूरी जिंदगी यूट्यूब के वीडियोस ही देखते रहोगे। एक वीडियो से मोटे हुए 4 घंटा काम किया, वापस शाम को आलस आ गई, दूसरा वीडियो देखना पड़ा, वापस 2 दिन काम, वापस आलस में चले गए, 2 दिन डिप्रेस हो गए, उसके बाद तीसरा वीडियो देखना पड़ा। उसी में पूरी जिंदगी चली जाएगी भाई। बी योर ओन टीचर, बी योर ओन गुरु। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, अपने आप को टोकना भी शुरू करो और अपने आप को ही मोटिवेट करना शुरू। क्यों पता है? क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। Nobody else can, because it's your life. You can only do it. Demand more from yourself. आखिर में फिनिश करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, आखिर की 2 मिनट है, ध्यान से सुनना। मुझे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि स्नेह, आप 25 साल से लोगों को मोटिवेट करते हैं, एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य के अंदर किसी को मोटिवेट करना चाहे तो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट क्या होगा? मैं वो स्टेटमेंट आपको बताने का रहा हूं जो मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है। लेकिन 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 ध्यान रखना और उसको पॉजिटिवली समझना, क्योंकि अगर नहीं समझ पाओगे तो नेगेटिव लगेगा, लेकिन है बहुत पॉजिटिव। उसका मीनिंग समझना जरूरी है। वो एक वाक्य जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है, वो है, हम मरने वाले। नोबडी कैन आर्ग्यू ऑन दिस, नोबडी कैन डिबेट ऑन दिस। भगवान है यानी उस पर डिबेट हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यानी उसके ऊपर डिबेट हो सकता है, बट नोबडी कैन आर्ग्यू ऑन डिबेट। एवरी सेकंड मैं और आप अपने मौत के करीब जा रहे हैं, और उसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। मैं समझ क्या दे रहा हूं वो समझो आप, कि मरना तो पक्का है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मरने से पहले जीने कितने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। यू नो, लोग मरने से डरते, मुझे डर लगता है उन लोगों से जिन्होंने जीते जी ही अपने गोल्स को और अपनी इच्छाओं को ही मार दिया है। उनको मरने की वेट करने की जरूरत ही क्या है भाई? फ्रेंड्स, we all are born with so much creativity inside us, we are born with so much to give to the world. उसे मारो मत। चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, थर्ड वेव आ जाए, या मोदी गवर्नमेंट कोई नया लॉ पास कर दे, डजंट मैटर। what you need to do is that you need to rise above all this and you need to make a difference. make a difference की भी दुनिया में आए हो, कुछ एक परिवर्तन लेकर जा सको। और जब ये परिवर्तन लाने के लिए मैं यहां पर आपको कह रहा हूं दोस्तों, तो बस इतना ही याद रखना कि 4 लोग हमें उठाकर लेकर जाएंगे, 4 लोग हमें उठकर लेकर जाएंगे। बस जीते जाते ये गोल सेट कर लो कि एटलीस्ट 4 परिवारों की जिंदगी में तो मैं एक मेजर चेंज क्रिएट कर सकूं। एंड आई एम सो प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज लीना जी जो कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है लेट्स ग्रो टुगेदर, यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि दोस्तों जीते जी अगर 4 परिवारों की जिंदगी में भी हम एक पॉजिटिव चेंज ला सके। एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार, लीना जी को जितने लोग मैसेज करेंगे या प्रोग्राम के बाद कोई फोन करके बात करेगा या दूसरे दिन पर मिल करके अगर थैंक्स कहेंगे, ऐसे 4 लोग भी जब मिल जाते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं,
उन्होंने जितना एफर्ट डाला है, यू नो देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट। मैं आपको बता दूं, मुझे कोई भी स्टेज पर लाने के लिए बहुत मेहनत लग जाता है, और वो मेहनत अलग अलग तरीके से लगता है। कभी मुझ तक पहुंचने का मेहनत लग जाता है, मुझे कन्विंस करने का मेहनत लग जाता है, कभी मेरे प्राइस का मेहनत लग जाता है, अलग अलग तरीके का मेहनत। और जरूरी भी नहीं है कि मुझे मेरा प्राइस को देने के लिए तैयार हो जाए तो भी मैं हाँ कह दूं। आई एम अ मूडी पर्सन। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में अब आपका कोई ऐसा गोल नहीं है कि कुछ और अचीव करना है, तो आदमी मूडी हो जाता है। और इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे कन्विंस करना आसान नहीं होता। बट वेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस ब्यूटिफुल पर्पस, जिस पर्पस से आज वो इतने सारे मीट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और आप सभी तक इतना ज्यादा नॉलेज लेकर आ चुके हैं, लेट मी टेल यू गाइस, यू नो शी इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमन। और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ सिर्फ वो अकेले नहीं है, बट उनको जो भी सपोर्ट करते हैं, उनका फैमिली सपोर्ट करता है, और आप सभी भी जो यहाँ पर काफी सारे अच्छे दोस्त यार और लीडर्स होंगे जो सपोर्ट करते हैं, उन सभी को शुक्रगुजार होना चाहूंगा। दैट तभी जाकर पॉसिबल हो रहा है। बट लेट मी टेल यू गाइस, सी दिस इज द प्रॉक्सिमिटी, दिस इज द इनर सर्कल। यही है मैं और ज्यादा सक्सेस तक लेकर जाता है। बिकॉज बिलीव मी, अब जो मैं कहने जा रहा हूं सुन लेना, बिलीव मी, आप हैं इसीलिए ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम वजह से हम हैं इसलिए ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप की वजह से हम हैं। और जब तक ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, जब तक आप लोगों की ऐसी दोस्ती यारी एग्जिस्ट करेगी ना, आपको जिंदगी जीने का पर्पस मिलते रहेगा। सो वॉट यू ऑल आर डूइंग इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं उन सभी से भी थैंकफुल होना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर स्पेशल वक्त निकाला, शाम के टीवी प्रोग्राम्स को अवॉइड किया है, फैमिली टाइम किया है, किचन को मैनेज किया है, और आपने वक्त निकाला है यहाँ पर आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। एंड गाइज, मैं पर आप सभी को एक छोटा सा गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगा, दैट इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी, तो मेरा एक अमेजिंग वर्कशॉप आ रहा है, एंड विच इज़ टोटली फ्री। ये वर्कशॉप मैं साल में एक बार करता हूँ, और उसमें मैं हर साल 50,000 लोगों को फ्री में नॉलेज देता हूँ, 50,000 पीपल, ओके। एंड इस वर्कशॉप का नाम है गोल मास्टरी। इस वर्कशॉप के अंदर इस बार मैं अपने साथ 3 और ऐसे पावरफुल स्पीकर्स को लेकर आया हूं। ये तीनों के अगर आप नाम गूगल करोगे ना, तो इनको सोशल मीडिया के ऊपर 30-30, 25-25, 50-50 लाख फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। और ये एक एक सेशन के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उतने सक्सेसफुल ट्रेनर्स हैं। मैं लेकर आ रहा हूं गोल मास्टरी के 5 दिन के वर्कशॉप में। ये जो गोल मास्टरी का 5 दिन का टोटली फ्री वर्कशॉप है, वो होने वाला है 8 से 12 फरवरी। कब? 8 से 12 फरवरी, हर रात को 9 सवा घंटे के लिए, हर रात को 9 बजे सवा घंटे के लिए, 8 से 12 फरवरी। और ये जो टोटली फ्री वर्कशॉप है, जिसमें 5 दिन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा गोल कैसे सेट किए जाते हैं और कैसे उसे साइंटिफिकली अचीव किए जा सकते हैं। उसे आप रजिस्टर करने के लिए जा सकते हैं goals.snehadesai.com। इट्स अ फ्री वर्कशॉप, लेट मी रिपीट दैट, इट्स अ फ्री वर्कशॉप। चैट बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दिया है, और स्क्रीन के ऊपर है उसका, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, goals.snehadesai.com। वहां पर जाकर के आप रजिस्टर कर पाएंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट तो आप सभी से करना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ये फ्री सेशन लेते हैं, मैं बस आपकी मदद चाहूंगा। 32,000 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, और इसको हमें 50,000 लोगों तक लेकर जा। एंड आई बिलीव ईच एंड एवरी वन इन फ्रंट ऑफ मी हैज अ बिग नेटवर्क। मैं जानता हूं ये बात, मुझे लीना जी ने पहले ही बता दिया था। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में इस लिंक को बांटिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपने मुझे एक्सपीरियंस कर लिया है, अब आपको पता है कि इस बंदे के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ठीक है? You can trust me, and you can forward the link as many people as you can in the groups and Facebook and WhatsApp, whatever you want. So goals.snehadesai.com, और आपका साथ जरूर हमें मदद करेगा और भी लोगों तक पहुंचने के लिए। So thank you so much guys. This was a great opportunity for me कि जिससे मैं आप सभी के साथ ये नॉलेज शेयर कर सका। And again grateful to लीना जी, जिन्होंने मुझे ये बेहतरीन मौका दिया। Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much, Desai ji. You are truly a blessed child. बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेस एंड ब्लेसिंग्स हमारी सबकी ओर से है, क्योंकि आपने जैसे ऐसा लगता है कि हम सबको हमारा अटेंशन पूरा कैप्चर कर दिया आपने। बिल्कुल, इट वाज मेस्मराइजिंग स्पीच बाय यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हम लोग थोड़ा टाइम से डिले चाह रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन,
तो हम कुछ 5 सवाल ही ले पाएंगे. Those who want to ask anything to the Sneh Desai ji can raise your hand and IT team will help you to unmute. Yeah. All right, Dr. Nupur ने हाथ ऊपर किया है. We can please unmute her. Dr. Nupur Shah, yes. Can you unmute her? Yes. Am I audible? Yes, you're audible. Tell me. Yes. Okay. Thanks a lot, Sneh Desai. So I have heard a lot about you from my दी, who यानी जो आपको गुरु मानती है, मिस श्वेता खत्री, the tarot card reader. जी. And I just wanted to ask, like, मैंने recently, like, I have, यानी मैंने दो law of attraction events मैंने face किया है. One was of COVID and the second was of my accident. मैं उसी वक्त यानी उसके 2-3 दिन पहले ऐसा सोच रही थी कि मुझे तो नहीं होगा. And now I have started to learn how to like get rid of those things. And the next thing is that I wanted to ask you how यानी गोल तो हम सेट कर लेते हैं पर कभी ना कंटाला आ जाता है. Like only today it happened with me कि सुबह मैं जॉब पे गई एंड आई वाज वेरी मच यानी चलो ये तो कर ही लूंगी आज, मैं इतना तो करना ही है मुझे आज के दिन. फिर जैसे जैसे शाम का टाइम आता है ना, वी बिकम लेथार्जिक कि नहीं ये नहीं हो रहा है, अब छोड़ दो, घर पे जाके कर लूंगी. सो हाउ टू गेट रीड ऑफ दोस थिंग्स. जैसे माइंड में आ रहा है कि इतना करना था, चलो इतना थोड़ा बाकी अब घर पे कर लूंगी. Yes, I understood what you're trying to say. So, नूपुर जी, मैं सभी के साथ ये शेयर करूंगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर, बट जब कभी भी पहले तो आपको कभी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आता है कि आज कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वैसा कुछ भी नेगेटिव, सो व्हाट यू नीड टू डू इज मन में ही कैंसिल और उसके बजाय 2 पॉजिटिव थॉट्स दे दो. यानी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ये पॉजिटिव थॉट नहीं है. पॉजिटिव थॉट, आई एम टोटली सेफ, दैट्स इट. कैंसिल मन में बोला जो नेगेटिव थॉट था, और उसके जगह पर 2 पॉजिटिव थॉट्स. तो ये कोई भी चीज के लिए हो सकता है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि भाई ओके, व्हेन यू स्टार्ट द डे आप एनर्जी में है, फोकस्ड है, फिर थोड़ा सा डीफोकस करते हैं. उसके लिए मैंने जो आपको 5 स्टेप्स आज बताए थे वो बहुत जरूरी है. सो स्टेप नंबर 1 वाज, अगर आपने गोल्स का लिस्ट नहीं बनाया तो उसे बना लीजिए. अगर बनाया हुआ है तो अब उसे कन्वर्ट कीजिए पिक्चर्स में और उस पिक्चर्स को अपने सामने रखिए. नाउ कम्स नंबर 3, विजुअलाइज दैट. हम ये डेली नहीं कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू डू दैट डेली. ओके, मेक इट अ हैबिट. एंड कोई भी चीज को में कन्वर्ट करने में 66 डेज लगते हैं. ठीक गाइस, इफ यू थिंक कि आज जो मैंने सिखाया वो 2, 5, 6 दिन आप कर लोगे और उससे होने लगेगा, तो वो नहीं होने वाला. बिकॉज आपकी बरसों की पैटर्न्स है, और उस बरसों की पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आपको 66 डेज कॉन्शियसली एफर्ट देनी पड़ेगी. ठीक है. सो visualization for 66 days, and every morning when you wake up, read your goals, ask this question, and night again ask that question as a review, as a feedback कि भाई क्या आज मैंने सही किया या नहीं किया. Now when you start doing this, तो ये जो पैटर्न आपने शेयर किया आज, वो पैटर्न धीरे धीरे ब्रेक होगा. 2 दिन में नहीं होने वाला. इट कैन टेक सम टाइम, अ मंथ और 2. एक 66 डेज का हमारा साइकिल होता है. बट इफ यू कंटिन्यू फॉर 90 डेज, यू विल सी अ न्यू नुपुर, एक नई आइडेंटिटी. आप खुद हैरान जाएंगे कि मैं पहले क्या थी, अब क्या हूं. इट टेक्स टाइम. इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू आई मीन, अगर आप में से कोई भी मुझे वगैरह पे क्वेश्चन पूछने वाला है तो उसका जवाब मैंने इसी के अंदर दे दिया है. इट्स वेरी सिमिलर टू जब आप नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं, तब पता नहीं था बैलेंस कैसे किया जाए, और एक बार बैलेंस करना आ जाता है तब पता नहीं चलता गिरना कैसे. ओके, बट वो शिफ्ट आने में it takes, that's it. 66, ideally 66. Okay, and who else? We have got a couple of more people. So वर्षा जी के पास चले जाते हैं. वर्षा जी is raising hand, तो चलिए वहां पर चलते हैं. एक सेकंड, उनका पूरा नाम क्या? वर्षा केशवानी जी. केशवानी जी. yes जी. Kindly unmute her. Okay. Yes.
Hello, good evening, Sneh Desai ji. It was wonderful listening to you. We had a lot of inspiration Good listening to evening. you. Thank you so much for this wonderful session. I have heard a little about lot of this लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मुझे थोड़ा ग्रैटिट्यूड के बारे में आपसे पूछना था, क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में भी बहुत सुना है अपार्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन, कि ग्रैटिट्यूड आल्सो मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. हाउ पावरफुल दिस टेक्निक इज? All right. I have altogether a different session on gratitude जो मैं 21 days के लिए लेता हूँ and every day 15 minutes. But पहले तो gratitude जो है, as everyone knows, हमारा माइंड डिजाइन हुआ है या मन की एक प्रकृति है ये देखना कि क्या नहीं है, what's not there. लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट होता है मिसिंग के ऊपर से या फ्लॉ के ऊपर से जो अच्छा है उसके ऊपर. सो अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑन दिस. हम सभी जब प्रार्थना करते हैं, हर एक धर्म ने अपने अपने मुताबिक प्रेयर के बारे में बताया है. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा नॉर्मल तरीका क्या होता है? इट्स लाइक भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है. बट मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर प्रेयर का एक अलग डेफिनेशन दिया है, एंड दैट इज प्रेयर मांगना नहीं होता, प्रेयर देना है. यानी कि जो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है उसके लिए थैंकफुल होना. सो व्हेन यू प्रे व्हाट यू शुड डू इज वेरी वेरी सिंपल कि भगवान जी मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे इतना अच्छा परिवार आपने दिया है, और सारा माहौल पैनिक वगैरह हम सभी सुरक्षित है, वी ऑल आर सेफ, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपकी वजह से हम सुरक्षित रह पाए हैं. वट एवर दैट माइट बी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सक्सेस यू हैव, फॉर द मनी और द कंफर्ट्स और लग्जरीज यू हैव. अब जब आप ये करते हो, अल्टीमेटली आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर दिया, फीलिंग्स को पॉजिटिव कर दिया. So in a way, now this works as a law of attraction to attract more positivity in your life. But let us suppose if you are complaining, जो इंसान का स्वभाव है, complain, condemn and criticize. ये 3C हमारी जिंदगी के विलन है. कंप्लेन कुड भी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं. क्रिटिसाइज इज ला इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, बुरा इंसान है. ये सब चलते रहता है आजू बाजू. तो आप जब ये कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप और बुरी सिचुएशन को अट्रैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग बैड. व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन बैड, व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव. तो रूल बहुत सिंपल है, अंधेरा दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंधेरे को ना झाड़ू मारना है ना वैक्यूम करना है, अंधेरे को दूर करना है तो आप उजाला लेकर आओ. सो क्रिटिसाइजिंग, कंडेम्ड या जो भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट्स, उसको दूर करना है तो क्या करना है? पॉजिटिव लेकर आओ. ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स इज नथिंग बट बीइंग ग्रेटफुल, आभारी होना. उसमें 3 बहुत पावरफुल है. लव एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल. ग्रेटफुलनेस एंड हैप्पीनेस. और उसमें जितना ग्रेटफुलनेस को हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल सुबह उठते हैं, स्टार्ट विद ग्रेटफुलनेस कि थैंक यू गॉड कि आज का दिन आपने देखने का मुझे मौका. जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग. आप वॉशरूम में गए, शावर किया, गर्म पानी मिल रहा है, बी ग्रेटफुल. क्यों? उसका रीजन है, सी कितनी सारी चीजों को हमने एज अ ग्रांट ले लिया है. होता ही नहीं होता. अब गर्म पानी छोड़ दीजिए, लोग सुबह उठते उनके पास पानी नहीं है, बट हमें पता भी नहीं है. वी आर नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर दैट एंड वी आर जस्ट बिजी इन अवर थॉट्स, और भाग रहे बस जल्दी से तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है. सो व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज कि जो ये लॉ ऑफ फेमिलियरिटी है ना, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांट, उससे ऊपर उठने के लिए ग्रेटफुलनेस को अपनाना पड़ेगा. नया मोबाइल फोन आईफोन खरीदा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बहुत हम पैशन के साथ यूज करते हैं, बहुत ख्याल है कहीं रख ना दे, भूल ना जाए, स्क्रैच ना लगे. और 6 महीने के बाद घर पे आए, बेड देखा, ऐसे दूर से फेंक दिया. नई गाड़ी लेते हैं, और नई गाड़ी भी आपने देखी होगी कि पहले महीने तक तो वो रिवर्स पार्किंग में ध्यान रखते हैं, पार्किंग के दौरान एकदम दूर से पार्क कर, एकदम करीब तक टच ना हो जाए सब कुछ. और 6 महीने के बाद उसको स्क्रैच भी लग रहा है या धड़ से दरवाजा बंद कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज नाउ यू आर फेमिलियर विद दैट थिंग, यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड. बट गेस व्हाट, अगर ये चीज चीजों के साथ हो रही है तब तक तो ठीक है. आप इमेजिन कर सकते हो फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, हस्बैंड और वाइफ के साथ होती है. पहले कितने हम ग्रेटफुल थे, कितना इंपॉर्टेंस देते थे, कितना फोकस देते थे. नाउ इट्स लाइक ठीक है. ग्रेटफुलनेस
can improve your health, your career, your success, your relationship. It can transform everything. Everything. All right. Okay. I'll take one more. So who else have? आप सभी के वीडियोस ऑन नहीं है, सो यू माइट हिट दैट बटन. पंक दोषी ने हाथ ऊपर किया, चलिए उनके पास चले जाते. एंड पंक्ति, यस प्लीज. Hi, thank you, Sneh Desai, for a power-packed presentation. Very, very useful. I have heard about the trying to raise your vibration to improve or speed in the manifestation. Can you talk a little bit about what are these vibrations, or what are the tips to sort of try and raise them or elevate the level of it? राइट. सो आप सभी ने एक सिंपल सी चीज सुनी होगी, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट. ये कोई साई-फाई नहीं है और होकस फोकस नहीं, बिकॉज साइंस हैज प्रूव्ड दिस थिंग. ओके, जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक हमारे आजू बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. सिंपल भाषा में तो एक एनर्जी का दायरा होता है, वाइब्रेशन का दायरा होता है. जब हम गुजरते हैं, व्हेन वी डाई, तो सरप्राइजिंगली बॉडी तो है अभी भी वहां पर, बट जब चेक किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं मिलता है. हाउ अमेजिंग इज दैट. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि हमारे आजू बाजू का जो एनर्जी फील्ड है, उसको अगर आप और भी समझना चाहे तो सिंपल एग्जांपल वुड बी मैग्नेट. मैग्नेट है फिजिकल मैग्नेट, वो बॉडी समझ लो, और मैग्नेट के आजू बाजू जो हमें दिख नहीं रहा बट एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन होता है, वो समझ लो कि अपने आजू बाजू का भी एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. होप नाउ इट मेक्स मोर सेंस टू यू. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, एंड वी कैन इंप्रूव और रेज अवर वाइब्रेशन. सी, एनर्जी जो है, एनर्जी कभी अच्छी बुरी नहीं होती है. एनर्जी कैन बी HF और LF, हाई फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी. जब एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में जाती है, इट बिकम्स ग्रॉस, यानी कि वो नेगेटिव होने लगती है. जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में जाती है, इट बिकम्स सटल, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिव. सिंपल एग्जांपल वुड बी, इफ यू गो समवेयर, लेट अस सपोज अ बार और अ पब, तो वहां पर जब आप जा रहे हैं तो उस जोन का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड दैट कैन बी अ लिटिल लो फ्रीक्वेंसी जोन, अ बिट ऑफ नेगेटिव जोन, क्योंकि जो एक्टिविटी वहां हो रही है और जो विचार वहां जनरेट हो रहे हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं. बट इफ यू गो टू अ टेम्पल, तो वहां पर जो एक्टिविटी हुई है और वहां पर जो सोच है लोगों की, that's a high frequency zone, बहुत पॉजिटिव एनर्जी. सो आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि एक्चुअली क्या पूछा गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले बेसिक कहा वाइब्रेशन या एनर्जी का. नाउ कम्स कि क्या हम अपने वाइब्रेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं. देन इज यस. इनडायरेक्टली मैंने आपको आज के सेशन के दौरान वो अलग तरीके से बताया था. अब मैं अगर इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके बताऊं तो नंबर 1, एनी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ गैजेट्स, बहुत ज्यादा करोगे तो वो आपके वाइब्रेशंस को कम कर रहा है. उसे आप दूर करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस को हाई करता है. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू मीट पीपल, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जिनको मिल करके आपको डाउन फील करते हैं, ऐसा लगता है यार मजा नहीं आया, या मूड खत्म हो गया, या एनर्जी कम हो गई. तो एट टाइम्स देयर आर पीपल और उनके ऐसे वाइब्रेशंस और उनकी ऐसी सोच होती है जो कभी कभार हमारे मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि हमारी एनर्जी को डाउन कर देते हैं. बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर पीपल कि जब हम डाउन होते हैं तब हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो हमें तुरंत ही लिफ्ट कर देते हैं, तुरंत ही उनको देख करके, मिल करके, हाथ मिला करके, हक करके, वी फील सो गुड, राइट. सो एट टाइम्स देयर आर पीपल जिनके बारे में भी मैंने आप सभी को कहा था कि डोंट थिंक कि आपकी वजह से ये बढ़िया सा ग्रुप चल रहा है. एक्चुअली ग्रुप की वजह से हम चाहिए है, बिकॉज दिस ग्रुप एंड द पीपल हियर आर हेल्पिंग अस टू अपलिफ्ट अवर एनर्जी. ठीक है. एंड जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे, बीइंग इन नेचर, नेचर ऑलवेज इंप्रूव्स वाइब्रेशंस.
improves your electromagnetic field. आपको इवन जब आप मौन में रहते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, जब आप ओवरऑल अपने थॉट्स को कम कर देते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रूव कर देता है. एनी फॉर्म ऑफ एंजाइटी या ओवर थिंकिंग जो है वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डाउन कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है. ओके, सो नाउ इसके ऊपर हम चाहे उतनी बातें कर सकते हैं. स्ट्रेस कैन रिड्यूस योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इवन द टाइप ऑफ फूड यू आर हैविंग वो भी इंपैक्ट कर सकता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट दैट, और उसके मल्टीपल पॉइंट्स है, बट आई होप यू हैव गॉट कपल ऑफ देम एट लीस्ट. वन वुड बी मेडिटेशन, सेकेंड वुड बी साइलेंस, बीइंग इन नेचर, टेक्नोलॉजी को थोड़ा अवॉइड कर देना, मॉर्निंग सन, थोड़ा सा जल्दी उठ करके मॉर्निंग सन को ले पाना या मॉर्निंग सन को देख पाना, या सन मेडिटेशन इफ यू कैन, वो सारी चीजें आपके एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपलिफ्ट कर सकती है. एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं दैट समबडी इज गोइंग इनटू अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में जब कोई इंसान जा रहा है तो क्या वो मोबाइल को साथ लेकर गया है? या दो चार दोस्तों को तो साथ लेकर जाएगा ही जाएगा क्योंकि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, राइट? नो, सी द सिंपल आइडिया इज कि वो अकेला हो जाता है भीड़ से, क्योंकि वो अपने आप तक पहुंचना चाहता है और वो टेक्नोलॉजी और गैजेट्स से और दुनिया से दूर हो जाता है, बिकॉज दैट हेल्प्स टू अपलिफ्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, योर वाइब्रेशंस. बट देन इट्स अ साधना, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग कि जो ओवरनाइट हो जाता है. बट आई टेल यू दिस इंटरेस्टिंगली, पंक्ति जी, आपको मजा आएगा ये कर कि जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को समझते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं फिलहाल आपको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, बट उसके ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी होती है. जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका जो एक स्टैंडर्ड, जिसको हम एवरेज कहते हैं, वो जो एवरेज वाइब्रेशन का जो लेवल है वो ही इंप्रूव होते जाएगा विथ टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट एनी ग्रेट मास्टर. ओशो हो सकते हैं, श्री श्री हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं. तो आउट ऑफ देयर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस उन लोगों ने उस वाइब्रेशनल रेट को इतना हाई कर लिया है कि उन्होंने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया है. फॉर देम इट्स नॉट लाइक कि कुछ करने की अब ज्यादा आवश्यकता है, बट स्टिल दे डू इट बिकॉज अगेन वो उनकी एक साधना है. और हमारे लिए फिलहाल इट कैन बी अ बिट न्यू, बट जैसे 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 वक्त देते जाएंगे वैसे वैसे वो आसान होते जाएगा. ऑलराइट, मैंने मतलब उस तरीके से आंसर किया है, आई बिलीव दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, वरना वो फिर वो साइफाई फिल्म हो जाता अगर उसको टेक्निकली आंसर करता. ऑलराइट, आई विल टेक द लास्ट वन नाउ, अल्टीमेटली द लास्ट वन. ओके, एनीबडी एल्स? प्रकाश जोशी है हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेज किया है, वी कैन अनम्यूट हिम देन. Okay. Yes, sir. Yeah. Snehaji, I'm Dr. Prakash Joshi. I'm aging 65 years. I'm MBBS from Vijay Medical College. आपको सुन के ऐसा लगता है कि हमने 65 साल में जो करना चाहिए उससे काफी कम किया है. और what the goal we have planned in our young age, that we have already we got more than so many things. We have achieved all the things. But अभी भी लगता है कि can we revise our goals or we should do it or not? जी जी. by the during our 82, yeah, sorry, हमने जो सोचा था वो तो सब अच्छी तरह मिल गया है, काफी अच्छी तरह मिला है. So still I think at our age 65 we should revise the goal. और जी, पहले तो मैं आपके आंसर उससे पहले मैंने 16 साल की उम्र सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो पहला वर्कशॉप लिया था, मेरे करियर का सबकॉन्शियस माइंड का पहला वर्कशॉप, विच वाज लाइक अ 2-day वर्कशॉप 16 साल की उम्र पर, वो मैंने लिया था बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल के लिए. तो आपने जब ये नाम ले लिया तो अचानक से मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई. वो अगेन ग्रेटफुलनेस मेरे अंदर थोड़ा आपके साथ कनेक्ट हो गया. आई फेल्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन फैमिली. नाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है दैट एट द एज ऑफ 65 क्या हमें अब कुछ रिवाइज करना चाहिए. ओके, नाउ लेट मी टेल यू दिस गाइस. नंबर 1 कि गोल्स 2 किस्म के होते हैं. पहला कि भाई मुझे मेरी लाइफ में अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या करना है. ठीक है, ओके. आई बिलीव जब आप 50 पर पहुंचने लगते हैं तो आप काफ़ी हद तक वो चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं.
और खास करके जिस ग्रुप के साथ आज मैं बात कर रहा हूं, आई फर्मली बिलीव कि आप सभी ने अपने लाइफ को एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही लिया है। बट कम्स द क्वेश्चन कि क्या गोल्स सिर्फ अपने लिए होते हैं? क्या गोल सिर्फ परिवार के लिए होते हैं? मे बी नॉट। सो यू नो द वर्ड रिटायरमेंट, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया, तो एक्चुअली आप कभी काम से रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट का हमेशा मैं लॉजिक ये देना पसंद करता हूं कि अब मैं रिटायर हो गया हूं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करूंगा। दिस इज रिटायरमेंट। लेकिन उसके बाद भी मैं काम करूंगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। अब मैं मे बी मेरे फैमिली को कोई सपोर्ट चाहिए उसके लिए कर सकता हूं, मेरे पड़ोसी को सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं कर सकता हूं, समाज को सपोर्ट चाहिए उसके लिए कर सकता हूं, कोई कम्युनिटी को सपोर्ट चाहिए, कोई क्लब को सपोर्ट चाहिए, कोई मंदिर को सपोर्ट चाहिए, फॉर अ कॉज, फॉर अ पर्पस मैं कुछ कर सकता हूं। यस, एट दिस एज ऑल्सो पर्सनल गोल भी सेट किए जा सकते हैं। दैट्स नंबर वन। नहीं है कि पर्सनल गोल नहीं होंगे। एट द एज ऑफ 65 यू कैन ऑल्सो सेट अ गोल कि ओके, let me achieve a Rolls Royce now. Yeah, you can also set a goal कि let me work for a society or a cause or a community. So I firmly believe कि सर अभी तो 35 साल बाकी है, तो 35 साल के लिए गोल तो होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि आप 50 के हो जाए, 60 के हो जाए, 70 के हो जाए, हम सभी समझते हैं सिंपल सी चीज को, दैट वी आर 50 यंग। राइट नाउ डॉक्टर प्रकाश दोषी जी है हमारे, तो वो 65 साल यंग है, और कोई 70 साल यंग भी हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में। तो अभी भी 30 साल बाकी है, तो कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना। बिकॉज सी, अगर हमारी लाइफ में पर्पस नहीं है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, हमारा बॉडी और माइंड है ना, डिजाइन हुआ है काम करने के लिए। लेकिन ऐसा रिसर्च कहता है कि फॉर एग्जाम्पल 60 की एज तक, एक रिटायरमेंट का इंडिया का जो एज है, तो 60 एज तक एक आदमी काम कर रहा था, तब तक एक सेहतमंद था। जैसे उसने रिटायरमेंट लिया, 1 साल हुआ, घर बैठा 1 साल, और अचानक सुनने को मिला कि थोड़ा ब्लॉकेज आने लगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आ गया, पैर में तकलीफ शुरू हो गई। भाई 1 साल पहले तक तुमको कुछ नहीं था, 1 साल में सब कुछ कैसे आ गया? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना जो इंडिया में आप पाओगे, एंड द रीजन बीइंग दैट इज नथिंग बट लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ गोल, कि आपने अपने बॉडी और माइंड की एक्टिविटी को डाउन कर दिया। सो फंडा इतना ही है कि अपने आप को हमें बिजी रखना है, और कोई हायर पर्पस के लिए बिजी रखना है। तो पर्सनल पर्पस भी होगा, नो प्रॉब्लम, पर्सनल गोल्स, या हायर पर्पस भी हो सकता है। एंड आप सर इतने अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, पढ़े लिखे हैं, तो आप जैसे लोगों की आज की जनरेशन को और ज्यादा जरूरत है, और आज की सोसाइटी को आपके एक्सपीरियंस और काम लगेंगे। तो आई फर्मली बिलीव दैट यू शुड श्योरली रिवाइज एंड रीथिंक। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस। जी लीना जी बताइए। Thank you so much, and with your consent, Sneh Desai, I would love to release my next session flyer. Allow me to release it. So बहुत सारी बातें आज की है, उसके बिल्कुल संलग्न ये बातें होने वाली है। कहते हैं कि sound is a vocabulary of nature, and sound will be the medicine for the future. NASA also has recorded sound of a sun, and its sound is like a om. शायद इसीलिए हम सूर्य की पूजा करते हैं। तो जॉयस लिविंग विद द पावर ऑफ साउंड के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, और हमारे बीच में स्पीकर होंगी डॉक्टर सुजाता सिंघी जी, जो कि बॉम्बे से हैं। सो सन का भी आपने बताया सुबह में निकलना चाहिए, तो सन की तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, और आपकी तो बातें ऐसे इट इज ऑलवेज अनस्टॉपेबल। पर अगेन लीना जी आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, वर्कशॉप आ रहा है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो अगला प्रोग्राम आ रहा है साउंड हीलिंग के ऊपर, लेट मी टेल यू, कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर सी बात कही है भगवत गीता में कि वेद में मैं सामवेद हूं। सामवेद का मतलब होता है साउंड, और हमारे हर एक धर्म के अंदर मंत्र और जो साउंड है उसका महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है। तो मैं सिर्फ इतना सही हल्का सा टच इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो मुझे सुन रहे हैं वो अगले सेशन को अटेंड करे, बिकॉज साउंड हीलिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। Yeah, thank you so much. Thank you so much. And I would like to express my deepest gratitude to Mr. Sneh Desai for his excellent thought-provoking talk and sharing his knowledge with and all of us present here
on the Let's Grow Together platform. To our wonderful audience, thank you so much for joining this session, your active engagement and helping us make this a successful event. Special thanks to all Rotarians from my Rotary family. Thanks to Rotary Club Ahmedabad Airport, President Sanjay Shah and other Rotarians, Rotary Club Metro, President Vatsal Shah and other Rotarians, Rotary Asmita, President Rakhi Khandelwal, Rotary Club Supreme, President Tarun Juan, Rotary Club Ahmedabad, President Lalit Sarafji, Rotary Club of E-Galaxy, President Tapan Shah, and Shri Jalawa Vishashri Mali Stanakwasi Jain Samaj President, Shri Umesh Bhai Doshi. I really thank you, all of you, from the bottom of my heart, and special thanks to Sneh Desai ji. God bless you, और आप ऐसे ही चमकते रहें पूरी सोसाइटी के लिए एक ध्रुव तारा बनके आप हमेशा चमकते रहें और अपनी रोशनी फैलाते रहें. Thank you so much, everyone. Thank you so much, and see you all in the next session. Thank you very much. Thank you. Thank you.